Hello dear students, I hope you all are doing good. Welcome back to the computer class. As you know, we have done with the midterm examination. So the chapters 1 to 5 will not come in post mid and finals. Today I am going to start the new chapter, that is chapter number 6, the keyboard. You all know that keyboard is the most important part of the computer. सभी को पता है ना कि कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कीबोर्ड. इट हैज वेरियस कीज ऑन इट. कीबोर्ड पे बहुत सारी कीज होती हैं. वी कैन टाइप नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस. ओके, इन कीज से हम क्या क्या टाइप कर सकते हैं? नंबर्स, वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंसेस. अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज. एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी होती है? 104. Okay. The first 6 characters of the first row of the alphabet keys are Q, W, E, R, T, Y. Q, W, E, R, T, Y. That is why it is known as QWERTY keyboard. देखो, जो अल्फाबेट कीज की फर्स्ट रो है उसके फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स ये हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? QWERTY कीबोर्ड. The first one is alphabet keys. Alphabet keys are 26 in number. That is from A to Z. But they are not given in alphabetical order. आपको ये alphabet keys दिखाई दे रही हैं. These keys are from A to Z. But they are not given in alphabetical order. ये आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं मिलेंगी. देखो, ए के बाद एस है, डी है, एफ है, जी है. ए के बाद आपको बी नहीं मिलेगा, सी नहीं मिलेगा. बी यहाँ है, सी यहाँ है. These keys are randomly placed. Alphabet keys are used to type words, sentences and paragraphs. Alphabet keys से आप क्या क्या टाइप कर सकते हो? Words, paragraphs and sentences. Suppose I want to write my name Himani. मुझे अपना नेम लिखना है हिमानी. I can write my name with the help of alphabet keys. Firstly, I'll press H, then I, then M, then A, then N and then I. Okay? This is all about alphabet keys. Now, number keys. Number keys are used to type numbers. They are 10 in number. That is from 0 to 9. You can type your house number, your roll number, your phone number with the help of number keys. They are present above the top row of the alphabet keys. Alphabet keys के ऊपर top row में आपको number keys मिलेंगे. Okay? The number keys are also present on the right side of the keyboard. नंबर कीज कीबोर्ड के राइट साइड पे भी मिलेंगी आपको. दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिक कीपैड. दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिक कीपैड. टू यूज दिस कीपैड प्रेस द नम लॉक की वंस. ये कीपैड यूज करने के लिए कीबोर्ड पे आपको एक नम लॉक की मिलेगी. ओके, आप उसको 1 टाइम प्रेस करोगे. द नम लॉक इंडिकेटर विल टर्न ऑन. कीबोर्ड पे नम लॉक इंडिकेटर होता है, उस पे ग्रीन लाइट आ जाएगी. Okay, after that you can type your numbers. Now special keys. First one is space bar key. It is the longest key on the keyboard. Space bar key क्या है? Longest key है keyboard की. Okay, it is used to give blank spaces between the text. Text के बीच में blank space add करना हो तो उसके लिए हम कौन सी की यूज करते हैं? Space bar key. Now caps lock key. Caps lock key is used to type alphabets in capital letters. Alphabets को capital letters में लिखने के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं? Caps lock key. Okay? Caps lock key को आप 1 टाइम प्रेस करोगे, then this indicator will turn on. Caps lock indicator will turn on. यहाँ पर ग्रीन लाइट आ जाएगी, इसका मतलब आपकी caps lock की एक्टिवेट है. इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से कैप्स लॉक की को प्रेस करना होगा. ओके, डीएक्टिवेशन के बाद जब आप अल्फाबेट्स टाइप करोगे आपके अल्फाबेट्स स्मॉल लेटर्स में आएंगे. ओके, नाउ बैक स्पेस की.
Backspace key is used to erase a character to the left side of the cursor. कर्सर के लेफ्ट साइड में हमने कोई कैरेक्टर डिलीट करना हो, उसके लिए हम कौन सी की प्रेस करेंगे? बैक स्पेस की. ओके. नाउ शिफ्ट की. शिफ्ट की इज यूज्ड टू टाइप स्पेशल सिंबल्स और पंक्चुएशन मार्क्स प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द कीज. शिफ्ट की का यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू टाइप स्पेशल सिंबल्स. These all are special symbols. And punctuation marks. These all are punctuation marks. Special symbols और punctuation marks को हम टाइप करने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं? शिफ्ट की. ओके. For an example, hold down the shift key. शिफ्ट की को आपको होल्ड करके रखना है and then press नंबर की 1. इसके बाद आप क्या करोगे? नंबर की 1 को प्रेस करोगे. आप मॉनिटर पे देखोगे वहां पर 1 की जगह एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, बिकॉज हमने शिफ्ट की प्रेस की हुई थी. राइट. सिमिलरली हम पंक्चुएशन मार्क्स भी ऐसे ही टाइप कर सकते हैं. शिफ्ट की को प्रेस करके जब आप ये वाली की प्रेस करोगे तो यहाँ पर स्मॉलर साइन आ जाएगा. ओके. देयर इज वन मोर यूज ऑफ द शिफ्ट की. शिफ्ट की का एक और यूज क्या है? दिस इज यूज टू टाइप अल्फाबेट्स इन कैपिटल लेटर्स. अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि हम कैप्स लॉक की को ऑन करते हैं तब हम कैपिटल लेटर्स में टाइप कर सकते हैं अपने अल्फाबेट्स, लेकिन हम शिफ्ट की से भी टाइप कर सकते हैं तब जब हमारी कैप्स लॉक की ऑफ होगी. ओके. जब आप शिफ्ट की को होल्ड करके रखोगे उसके बाद अगर आप एच प्रेस करोगे तो आपका एच कैपिटल्स में आएगा. Now, enter key. Enter key is used to move the cursor to the next line. Cursor को next line में लाने के लिए हम कौन सी की प्रेस करते हैं? Enter key. There are 2 enter keys on the keyboard. One is here and second one is here. Okay, there are 2 enter keys on the keyboard. Now, symbol keys. The symbol keys have special characters on them. सिंबल कीज पे क्या होंगे? स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे. दे कैन बी टाइप्ड विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की. इनको हम कैसे टाइप कर सकते हैं? शिफ्ट की हेल्प से. ओके. दे आर प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द नंबर कीज. नंबर कीज के अपर पार्ट पे आपको सिंबल कीज मिलेंगी. ओके. नाउ टैब की. टैब की अलाउज द कर्सर टू जंप 5 स्पेसेस फॉरवर्ड. टैब की क्या करती है? कर्सर को 5 स्पेस फॉरवर्ड कर देती है. ओके. देखो अब मुझे कर्सर को 5 स्पेस फॉरवर्ड करवाना है. या तो मैं 5 टाइम्स स्पेस बार की को प्रेस करूं. 1 टाइम प्रेस किया 1 स्पेस ऐड हुई. सेकेंड टाइम प्रेस किया सेकेंड स्पेस ऐड हुई. सिमिलरली मुझे 5 टाइम्स इसको प्रेस करना होगा तो मेरी 5 स्पेस फॉरवर्ड होगा कर्सर. अगर मैं टैब की को 1 टाइम प्रेस करूंगी तो डायरेक्टली मेरी 5 स्पेस फॉरवर्ड हो जाएगा कर्सर. ओके. नाउ फंक्शन कीज. फंक्शन कीज आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स. दे आर 12 in number, that is from F1 to F12. They are present on the topmost row of the keyboard. कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली रो में आपको फंक्शन कीज मिलेंगी. These keys have different functions for different programs. इन फंक्शन कीज का हर प्रोग्राम में डिफरेंट फंक्शन है. Let's discuss navigation keys. First one is cursor control keys. Cursor control keys are used to move the cursor on the screen. स्क्रीन पे हम अपने कर्सर को मूव करा सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में. They are also called arrow keys. इनको हम और भी क्या बोल सकते हैं? एरो कीज. दिस इज अप एरो की, दिस इज डाउन एरो की, दिस इज राइट एरो की एंड दिस इज लेफ्ट एरो की. अप एरो की से कर्सर को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं. डाउन एरो की से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट से राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट से लेफ्ट डायरेक्शन में. ओके. नाउ होम की. दिस इज योर होम की. Home key moves the cursor to the beginning of the line.
लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमें लेके जाना हो कर्सर को तो हम कौन सी की प्रेस करेंगे? होम की। नाउ एंड की। एंड की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ अ लाइन। लाइन के एंड में हमने कर्सर को लेके आना हो तो हम कौन सी की प्रेस करेंगे? एंड की। इफ वी प्रेस कंट्रोल एंड होम की टुगेदर द कर्सर विल मूव टू द टॉप ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जब हम कंट्रोल और होम की को एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर है वो डॉक्यूमेंट के टॉप पे चला जाएगा। इफ वी प्रेस कंट्रोल एंड की टुगेदर द कर्सर विल मूव टू द बॉटम ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जब भी हम कंट्रोल और एंड की को एक साथ प्रेस करेंगे कर्सर हमारा डॉक्यूमेंट के बॉटम में चला जाएगा। नाउ पेज अप। What is the use of page up? Page up moves the cursor or page up by one screen. Page up क्या करता है? कर्सर को one screen page up कर देता है। Okay? Now page down. What is the use of page down? It moves the cursor or page down by one screen. ये क्या करता है? पेज डाउन कर्सर को one screen पेज डाउन कर देता है। Okay? Now डिलीट की। डिलीट की इज यूज टू इरेज द कैरेक्टर टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर। डिलीट की क्या करती है? कर्सर के राइट साइड में जो कैरेक्टर होता है उसको डिलीट करती है। बैक स्पेस की क्या करती थी? कर्सर के लेफ्ट साइड में जो कैरेक्टर है उसको डिलीट करती है। ओके, नाउ द लास्ट वन इज इंसर्ट की। इंसर्ट की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसर्ट की? It turns the insert mode on or off. Insert की क्या करती है? Insert mode को on या फिर off करती है। When the insert mode is on, जब insert mode on है, you can insert the text at the cursor position. आप cursor की position पे text insert कर सकते हो जब आपका insert mode on है, right? And when it is off, जब आपका इंसर्ट मोड ऑफ है, द टेक्स्ट दैट यू टाइप रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स। जब आपका इंसर्ट मोड ऑफ है उसके बाद जब आप कोई कैरेक्टर्स टाइप करोगे तो जो आपके कैरेक्टर्स पहले से हैं उसको रिप्लेस कर देगा। वो न्यू टेक्स्ट आपका एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर देगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इंसर्ट की। एंड विद दिस वी हैव डन विद द चैप्टर नंबर 6, the keyboard. I hope you have enjoyed a lot because you have learned so many new things. So do practice it, revise it and learn it. Thank you. Take care. Bye bye.